Hello friends, I am Raj Deepak Singh, and as I've told you that this is my new YouTube channel. As I have promised you earlier, that I'm going to give you a video so that you have a very good analysis, or you have a like an overview that what type of question you are going to get in the exam. Okay, so in this particular video I'm very specific to the agriculture economy and computer awareness. Okay, in this video I am going to give you 45 question, and I am going to tell you everything regarding agriculture economy and computer awareness questions. Okay, so that you can actually get the overview that what type of question, what is the level of the question, how the what whether the question is very harder or they are going to ask general question. You have like an overview of the real exam. Okay, so uh, before starting, I just want to tell you one more thing, that this 45 question is totally based on agriculture economy and computer awareness, but additionally I am going to give you the information with respect to the current affairs also. Okay, so let's start with this video. So we have like our first question is, which of the following works solely to monitor and arrange flow of agriculture credit in India? Okay, so wait which of the following organization works solely to monitor and arrange फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया? मतलब इसमें ये पूछा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड जो भी फ्लो होता है इंडिया में, उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखता है? तो द आंसर विल बी नबार्ड. ओके, नबार्ड इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल इन रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो ये बैंक है. NABARD is the bank which actually monitors everything with respect to the agriculture credit in India. Okay, look, I just want to add some additional information to the NABARD, that NABARD का जो recommendation था वो शिवरमन कमेटी ने दिया था. Okay, शिवरमन कमेटी, SHIVARAMAN, शिवरमन कमेटी ने दिया था, COMMITTE. Okay, and NABARD was like established on 12th of July 1982. NABARD का जो establishment था वो 12th of July 1982 में बना था ये. ठीक है, and the purpose of the NABARD is to based on, it is the bank which like relates with the agriculture and rural development. Okay, and initially इसका जो capital था वो 100 करोड़ का था, 100 करोड़ कैपिटल था इनिशियल. एंड NABARD इज़ टोटली फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे 100% स्टेक है. ओके, NABARD पे. और वन मोर थिंग कि NABARD का जो चेयरमैन है, NABARD के जो चेयरमैन है, द नेम ऑफ द NABARD चेयरमैन इज़ गोविंद राजुलू चिंटाला. ठीक है, ये लेटेस्ट में. अर्लियर थे NABARD के जो चेयरमैन अर्लियर थे वो हर्ष कुमार भनवाला थे, आई थिंक. यस, एंड लेकिन अभी दिस ईयर गोविंद राजुलू चिंटाला को अपॉइंटमेंट कर दिया गया. ओके, सो दिस इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द करेंट अफेयर्स. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग NABARD. एंड लाइक RBI का आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935. और इसके जो गवर्नर है RBI के वो शक्तिकांत दास हैं. ओके, शक्तिकांत दास. और सेबी का आपको पता ही है कि इसकी जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए ये, अभी प्रेजेंट टाइम पे अजय त्यागी हैं. ओके, एंड अबाउट सिडबी का हेडक्वार्टर लाइक लखनऊ में. और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है, सिडबी के जो चेयरमैन उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई थिंक. यस, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, आई थिंक. मतलब एक सेकेंड, वेट. हाँ, द चेयरमैन ऑफ सिडबी इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द सिडबी इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is our first question. Now the second question is basically on
agriculture question. An area in which seedlings are raised to be transplanted elsewhere is called. तो इसको नर्सरी कहते हैं एक्चुअली में. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वह एरिया बताइए जहाँ पे हम सीडलिंग को एक्चुअली में, जहाँ पे सीडलिंग हमारे पास होते हैं और वहाँ से हम किसी और जगह उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. एन एरिया इन विच सीडलिंग्स आर रेज्ड टू बी ट्रांसप्लांटेड एल्सवेयर. मतलब कि ये पूछ रहा है कि पौधे को हम कहाँ पे रखते हैं और जब हमें उसे मतलब बोना होता है तो हम उसे कहाँ पर बोते हैं. तो एक्चुअली में पौधों को जो हम लोग कंजर्व करते हैं वो नर्सरी में होता है. आपने देखा होगा नर्सरीज़ में बहुत सारे लाइक 1000 लाख्स ऑफ 10 लाख्स ऑफ पौधेज मतलब डिफरेंट नर्सरीज़ में होते हैं. ओके, so the correct answer for this question is nursery. Now the next question, an example of parallel cropping. Parallel cropping क्या होता है बेसिकली कि under this cropping two crops are selected which have different growth habits and have a zero competition between each other and both of them express their full yield potential. Parallel cropping में बेसिकली क्या होता है कि हम दो कोई लाइक इसका आंसर आप देखो, वीट और मस्टर्ड है. तो लाइक इसमें हम कोई दो क्रॉप है वीट और मस्टर्ड, इसको सेलेक्ट करते हैं जिनके क्या बोलते हैं ग्रोथ हैबिट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ओके, जो ग्रोथ हैबिट्स होते हैं इनके, वो ग्रोथ हैबिट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं एंड हैविंग अ ज़ीरो कंपटीशन. और इन दोनों के बीच यानी वीट और मस्टर्ड के बीच कोई कंपटीशन नहीं है. ओके, सो कंपटीशन है एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देयर फुल यील्ड पोटेंशियल. जिससे कि कंपटीशन ना होने की वजह से जब हम इसको क्रॉपिंग करेंगे तो ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल पे आउटपुट देंगे. ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल पे आउटपुट देंगे. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग. वीट और मस्टर्ड इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई जब हम इसको क्या बोलते हैं क्रॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे एज एन आउटपुट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर all fruits are in general dash in nature. This is a very general question and this question is asked very frequently in the exam for the agriculture field. Okay, so इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फ्रूट्स हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसमें लगा के आ जाते हैं लाइक ऑल ऑफ द अबव. Okay, most of the candidates, even I have like attempted as all of the above, but the actual answer when I know is your acidic होते हैं. like most of the fruits जो होते हैं वो acidic in nature होते हैं. जनरल की बात कर रहा हूँ मैं. मोस्ट ऑफ द फूड, फॉर एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे देखो लिखा है मोस्ट पीपल प्रोबेबली नो दैट सिट्रिक एसिड इज़ द सोर्स ऑफ लेमन सोर्सेस. यानी सिट्रिक एसिड लेमन में होता है. सिट्रिक एसिड जो आपका नींबू होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो ये तो बहुत ही कॉमन है. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स होते हैं वो भी एसिडिक इन नेचर होते हैं. लाइक यू कैन से दैट ऑरेंज हो गया, एक एग्जांपल ले लो. ग्रेप्स भी आपका एसिडिक इन नेचर होते हैं जनरल में. ग्रेप्स हो गए. लाइक यू कैन टेक अ डिफरेंट नेम्स ऑफ फ्रूट्स. so this type of question they are going to ask in the exam for sure. So you have like a proper idea on these type of question. Okay, so next question is a short duration crop in between two main seasonal crop is termed as. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि मतलब वो क्रॉप का नाम बताइए जो दो मेन क्रॉप के बीच में, सीजनल क्रॉप्स के बीच में लगाया जाता है. मतलब लेट्स सपोज यू हैव वन क्रॉप जो कि हम गर्मी में लगाते हैं और दूसरा क्रॉप की अगर हम ठंडी में लगाते हैं. तो ये पूछ रहा है कि उसके बीच के ड्यूरेशन में, मतलब उसके बीच के ड्यूरेशन में आप कौन सा क्रॉप लगाओगे. एक समर का हो गया, एक विंटर का हो गया, तो उसके बीच में आप कौन सा क्रॉप लगाओगे उसी को कैच क्रॉप कहते हैं. ओके, जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. आप इसका डेफिनेशन पढ़ो. अ क्रॉप ग्रोन इन द स्पेस बिटवीन टू मेन क्रॉप और एट अ टाइम व्हेन नो मेन क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इज़ नोन एज कैच क्रॉप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछता है कैच क्रॉप. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द कैच क्रॉप. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Growing of crops between the rows of
पेरेनियल ट्रीज और श्रब्स को हम क्या कहते हैं? ओके, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बिटवीन द रोज ऑफ पेरेनियल ट्रीज और श्रब्स को हम क्या कहते हैं बेसिकली, तो ये बताना है हमें। तो जो आपका पेरेनियल ट्रीज़ का मतलब ये होता है, लाइक आपने देखा होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रीज़ है, ये एक रो हो गया, यहाँ पे एक रो का ट्रीज़ है, ठीक है, ये रो हो गया। अब जब आप इसके बीच में फार्मिंग करते हो ना, जब कोई क्रॉप्स को आप वो फार्म करते हो, तो एक्चुअल में यही होता है, इसको हम पेरेनियल ट्रीज़ कहते हैं, पेरेनियल ट्रीज़ और रोप्स। तो ग्रोइंग, और जो हम इसके बीच में क्रॉप्स उगा रहे हैं, इसको हम कहेंगे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ओके, सो these type of cropping we will found actually in this type of cropping we will actually found in like LA cropping में होता है, LA cropping में होता है। ओके, LA cropping होता है वो क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज, और ये बेसिकली हम फाइंड करते हैं हिली एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में। ओके, हिली एरियाज़ में हो गया, या फिर आप फॉरेस्ट में देखोगे, फॉरेस्ट्स में these type of crops you are going to found in LA, मतलब LA cropping is basically found in hilly areas or forest. Okay, so this is regarding LA cropping. Now we have also covered this relay cropping, mixed cropping, intercropping, and we have discussed LA cropping. Now this is actually the like types of cropping, you can say that. So we will discuss one by one so that we have a broader overview on these types of cropping system. Okay, so what actually is relay cropping? तो रिले क्रॉपिंग का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होता है कि जो इसमें सेकंड क्रॉप होता है, मान लो आपने 2 क्रॉप लगाए हैं किसी एक लैंड पे, तो जो सेकंड क्रॉप इज़ प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। रिले क्रॉपिंग में ये होता है, मतलब कि अगर आपने लेट सपोज 2 क्रॉप लगाए हैं, तो इसमें इसका डेफिनेशन एक्चुअल ये होता है कि फर्स्ट क्रॉप के काटने से पहले, फर्स्ट क्रॉप, लेट सपोज ये फर्स्ट क्रॉप है, इसके काटने से पहले, मतलब इसके हार्वेस्टिंग करने से पहले अगर आपने दूसरा क्रॉप लगा दिया है तो वो एक्चुअल में रिले क्रॉपिंग होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे जो मैं क्रॉप लगा रहा हूँ, जैसे एक तो राइस हो गया प्लस काउलीफ्लावर, CAULI, काउलीफ्लावर प्लस ओनियन, ONION। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो अगर लेट सपोज आपने 3 क्रॉप लिया, 1 2 3, अब मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब मैंने ये क्रॉपिंग को बोया, और फिर जब मैं इसको काटने जा रहा हूँ उससे लाइक कुछ टाइम पहले मैंने इस क्रॉप को बो दिया है, और अगर मैं इस क्रॉप को बो रहा हूँ तो, और इसके काटने से पहले लेट सपोज मैंने इस क्रॉप को भी बो दिया है, तो ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि कुछ टाइम शेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो इसे ही कहते हैं रिले क्रॉपिंग। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द रिले क्रॉपिंग। ओके, सो दिस इज़ रिले क्रॉपिंग, एंड वेट आई हैव टू रब दिस। नाउ वी विल डिस्कस ऑन मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है एक्चुअल में? ओके, सो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? सोइंग 2 और 3 क्रॉप्स टुगेदर ऑन सेम लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा पौधों को एक ही लैंड पे बोते हैं, जैसे ये लैंड है, लेट सपोज ये लैंड है, इस पे अगर मान लो हमने 1 2 3 क्रॉप बोए अलग अलग, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बस आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो इन तीनों में से जो एक क्रॉप होगा वो मेन क्रॉप होगा, MAIN, मेन क्रॉप, CROP, और बाकी जो 2 क्रॉप्स होंगे वो इसकी सब्सिडरीज होंगे, सब्सिडरीज मतलब इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, बाकी जो 2 क्रॉप्स होंगे वो इसके सब्सिडरीज होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, नाउ कम टू द इंटरक्रॉपिंग। व्हाट एक्चुअली इज़ इंटरक्रॉपिंग योर? तो इंटरक्रॉपिंग का डेफिनेशन ये है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, लाइक लेट सपोज, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये आपका एक लैंड है, ओके, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग में क्या हो जाएगा कि आप अगर लाइक 2 या 3 फसल उगा रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेट सपोज आपके पास 3 फसल हैं, 1 2 3,
ठीक है। फसल मतलब आप इस लैंड पे ये 3 चीज़ उगाना चाहते हो, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या हो जाएगा कि आप इस पूरे लैंड का एक-एक एरिया का यूटिलाइजेशन करोगे by actual like cultivation of 3 crops you can use the maximum area of this particular land। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसी खेती करोगे जिससे कि आप लेट सपोज़ ये पहला क्रॉप है, इसको आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। फिर ये दूसरा क्रॉप है, इसको आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फिर ये तीसरा क्रॉप है, इसको आपने यहाँ पे लगा दिया। तो इससे क्या होगा, आप इस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इंटरक्रॉपिंग, वेयर यू एक्चुअली utilize the maximum land by using your cropping technique। So this is regarding the complete definition of this is regarding the complete definition of your relay cropping, mixed cropping, intercropping, LA cropping। and मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको 100% पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको 100% पूछेगा एग्ज़ाम में। तो मैं आपको इसके क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग का आपको एग्जांपल ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इसका एग्जांपल बहुत पूछता है। इसका एग्जांपल है वीट के साथ आपने या तो ग्राम की खेती की है, या फिर और वीट के साथ आपने मस्टर्ड की खेती की है, ठीक है। MUSTARD, मस्टर्ड की खेती की। वीट मतलब होता है गेहूँ, ग्राम मतलब आपको पता ही होता है कि चना होता है, और वीट अगेन गेहूँ, और आपका मस्टर्ड जो होता है वो सरसों होता है। बस इतना याद। हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू एड्रेस इज़ दैट देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्चुअली डज नॉट नो द बेसिक्स ऑफ कि राइस, जैसे राइस, वीट, पल्सेस, पैडी, मस्टर्ड, मेज, इनकी एक्चुअल मतलब वो क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इनको हिंदी में क्या कहते हैं। दे एक्चुअली कन्फ्यूज्ड इन दिस। सो आई जस्ट वांट टू टेल अ वेरी शॉर्ट ऑन दिस कि आप राइस को चावल कहते हो, ठीक है। राइस चावल हो गया आपका। वीट को आप गेहूँ कहते हो, ठीक है। पल्स को आप दाल कहते हो, ठीक है। मस्टर्ड को आप कहते हो, मस्टर्ड सरसों होता है, मस्टर्ड इज़ सरसों, रिमेंबर दिस। ये बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं। मेज़ होता है आपका मक्का, मेज़ होता है मक्का, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सॉरी, एक सेकेंड, मेज़ आपका मक्का होता है, ठीक है। मेज़ मतलब मक्का। योर नेक्स्ट वन इज़, ये भी पूछता है कॉटन क्या होता है। कॉटन मतलब होता है आपका कपास। फिर आपका नेक्स्ट होता है वूल, वूल मतलब होता है ऊन, ठीक है। और एक और होता है आपका बाजरा, मिलेट्स, MILLETS, मिलेट्स मीन्स होता है बाजरा। सो ये जो मैंने इतने लिखे हैं ना आपको ये स्क्रीन पे, यू हैव टू नो द हिंदी ऑफ दिस, अदरवाइज when you are going with respect to the options you are actually going to confuse that किसको क्या कहते हैं, कहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका बेसिक आइडिया रखोगे ना इन सारे चीज़ का, तो एक्चुअली में आपको एग्रीकल्चर पढ़ने में बहुत ईजी होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप इजीली क्या बोलते हैं रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन से। आपको ये सुनने में बहुत ईजी मतलब वो लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक है, तो सबको पता होता है। नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं पता होता है सीरियसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग राइस। देयर आर सर्टेन स्टेप्स होते हैं किसी भी आप क्रॉप को उगाने के सर्टेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड होता है। सबसे पहला क्या स्टेप होता है, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मतलब आप पहले किसी एक फील्ड को तैयार करते हो। फिर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि आप उसमें ट्रांसप्लांट करते हो, यानी कि उसमें जो भी आपके पौधे हैं या फिर जो भी आपकी खेती है उसको आप मतलब बोते हो, ठीक है। बोना, ट्रांसप्लांटेशन इज़ बोना।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फील्ड मेंटेनेंस। फिर आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, लाइक मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप उसको कितना वो दे रहे हो, फर्टिलाइज़र दे रहे हो, मतलब आप उसकी ग्रोथ को देखते हो कि एक्चुअली यू आर गेटिंग द आउटपुट्स और नॉट। ओके, दिस इज़ द मेन परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड मेंटेनेंस। फिर फील्ड मेंटेनेंस के बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई। पौधे आपके मैक्सिमम आउटपुट दे चुके हैं, अब आपने इसको काटा, ठीक है, आपने इस सब को काट दिया, मतलब बाहर ले आए, ये रहे आपके सारे बाहर क्रॉप्स आ गए। अब लास्ट में आपको क्या होता है, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड मिलिंग। इसका मतलब होता है कि जो आपके, लेट सपोज आपने गेहूं का वो क्रॉपिंग किया था, तो आप इसमें से अब मतलब नहीं होता, आप इसमें से अब गेहूं निकालोगे। अब वो कौन सा प्रोसीजर होगा, देर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर, लेकिन आप इस फसल में से अब गेहूं को निकाल करके लाइक गेहूं का एक बोरे में डालोगे। दिस इज़ द फिफ्थ प्रोसेस। सो दिस इज़ लाइक, this is, you can say that, step by step process, like preparation of field, then transplantation, then field maintenance, then harvesting, then threshing, winnowing and milling. Okay, so this is the complete step, you can say that, regarding this. now क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे, एक सेकेंड, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि लाइक द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग राइस को क्या कहेंगे आप। तो जब आप फसल को लाइक जो आपका चावल है उसको आप ग्रो करते हो, तो उसका जो फिफ्थ स्टेप होता है वो वीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग होता है। रिमेंबर दिस, वीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग योर फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर प्रोटीन कंटेंट ऑफ राइस। राइस में, चावल में प्रोटीन का कितना कंटेंट होता है, तो एक्चुअल में 6 to 7% होता है, ठीक है, 6 to 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इज एम्ड एट कंट्रोलिंग प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ। इसमें बोला गया है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड होते हैं उनका एम क्या होता है, एट कंट्रोलिंग प्राइस वोलेटिलिटी। ओके, मतलब वो प्राइस के ऊपर नीचे को स्टेबलाइज करते हैं, कौन, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो वो किस पे करते हैं, यानी कि किस कमोडिटीज़ पे करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे करते हैं, ठीक है। लाइक यू हैव सीन दैट इन डिफरेंट बजट्स यू आर गोइंग टू गेट दिस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे ही हो, डिफरेंट कमोडिटीज़ पे होते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे, ये जो नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे ही लागू है। ये जो स्टेबलाइजेशन फंड है ये डिफरेंट कमोडिटीज़ पे होता है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वो बेसिकली उसका नाम ही प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Krishi Sampada Yojana is related to which of the following areas? So Prime Minister Krishi Sampada Yojana is basically of boosting investment in food processing, ठीक है, boosting investment in food processing is the प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का एक्चुअल वो मोटो था। द ऑब्जेक्ट, लाइक यू कैन सी द डेफिनेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY इज़ टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग, उनके प्रोसेसिंग में लाइक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे मॉडर्नाइज करना, एंड डिक्रीज़ एग्री वेस्ट, और और उनमें जो एग्री वेस्ट होता है उनको डिक्रीज़ करना। ये है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। नाउ द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नाउ हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया? अर्लियर इट वॉज हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल पहले थी, ये पंजाब से थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन राइट नाउ फार्म लॉस की वजह से, फार्म बिल की वजह से, जो इतना कंट्रोवर्शियल बिल था, इन्होंने क्या कर दिया, अपना पदवी छोड़ दिया, मतलब इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी। तो ये मिनिस्ट्री दे दी गई है नरेंद्र सिंह तोमर,
ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर को ये मिनिस्ट्री मिल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. रिमेंबर दिस इज अ वेरी करंट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम. हु इज़ द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो द नेम इज़ नरेंद्र सिंह तोमर. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लगाएंगे हरसिमरत कौर बादल, बट ही हैज़ लाइक रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. ही इज स्टिल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही हैज़ नॉट right now the place of Ministry of Food Processing. Okay, so Narendra Singh Tomar is the answer. Again I am showing this is very important question, so you have to remember this question. Now move to the next question. Short period markets are found for perishable goods. Short period markets are found for perishable goods. इसका आंसर perishable goods है. अब इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं एक्चुअली में. ये नहीं पता होता है. मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आपको क्या मिलेगा. जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं उनको सबसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, उनको ये कीवर्ड्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है. लाइक पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, फूड ग्रेन्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, पल्स क्रॉप्स क्या होते हैं. और इन द क्या बोलते हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव टेल यू लाइक राइस, वीट, पल्स, पैडी, मस्टर्ड, मेज, इनको हिंदी में क्या कहते हैं. ठीक है, सो जितना आप बेसिक से क्लियर रहोगे उतना आपको आंसर्स लगाने में बहुत ईजी होगा. अगेन आई एम सेइंग द क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी वन लाइनर, but the question is going to be very trickier with respect to the options. Okay, so based on your understanding, because this is FCI AGM, यहाँ पे like आपको questions का level तो मिलेगा for sure, so you have to decide कि आपको किस level तक तैयारी करनी है. Now what is perishable goods? Perishable goods का मतलब होता है कि ख़राब हो जाने वाला सामान. ठीक है, ख़राब हो जाने वाला सामान, उसको हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं. फूड ग्रेन्स तो आपको पता ही होता है, फूड जो एक्चुअल में फूड्स होते हैं. ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो बहुत टिकाऊ वस्तुएं होती हैं. और पल्स क्रॉप्स का मतलब होता है दाल वाले, जो मतलब जो दाल के वो क्रॉप होते हैं. ठीक है, पल्स. नाउ सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को, ये पेरिशेबल गुड्स का और ड्यूरेबल गुड्स का. तो पेरिशेबल गुड्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ख़राब हो जाने वाले सामान जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और आप जो भी चीज़ जो ख़राब हो जाए आप उसको पेरिशेबल गुड्स में इंक्लूड कर सकते हो. ड्यूरेबल गुड्स जो ख़राब ना हो, लाइक यू कैन से दैट कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब ना हो वो ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएंगी. तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस. क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि शॉर्ट पीरियड मार्केट्स आर फाउंड फॉर. ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट किसके लिए फाउंड होते हैं. तो शॉर्ट पीरियड यानी कम समय यानी कि जो कम समय, इसका मतलब कि जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे वही तो कम समय लेंगे ना. तो कम समय में आ जाएगा आपका पेरिशेबल गुड्स. अगर यहीं पे लॉन्ग पीरियड मार्केट्स आर फाउंड फॉर, तो उसका आंसर होता है ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड का मतलब ज़्यादा समय, और ज़्यादा समय मतलब कि जल्दी ख़राब ना होने वाले गुड्स. ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड ग्रेन मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स, वूल मार्केट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड मार्केट. ओके, ये स्पेशलाइज्ड मार्केट होते हैं, मतलब ये स्पेशलाइज्ड मार्केट के अंदर में आते हैं. लाइक यू ऑल्सो हैव टू गो टू रीजनल मार्केट डेफिनेशन, जनरल मार्केट डेफिनेशन, वर्ल्ड मार्केट में क्या क्या आते हैं. यू हैव टू लाइक ग्रैब ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ऑल मार्केट्स. ओके, ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट केम इनटू ऑपरेशन ऑन विच डेट. तो ये बेसिकली 18 मार्च 1962 में आया था. 18 मार्च 1962 में द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स. ओके, सो आपको ये एक्ट का कब क्या बोलते हैं इसको लागू किया गया था ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर सेंट्रल एगमार्क लैब इज़ लोकेटेड एट. सेंट्रल एगमार्क लैब कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये बेसिकली नागपुर में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में. ठीक है, मुंबई में. ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है ये नागपुर. सेंट्रल एगमार्क लैब इज़ लोकेटेड. Now the next question is your, the Agriculture Produce Grading and Marketing Act was passed in the year. This question is very important. Again I am saying ये previously क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है. ठीक है,
ये प्रीवियसली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था, तो वो 1937 में पास किया गया था। अब ये एक्ट एक्चुअली में क्या कहता है कि एक्ट का कहना ये है कि 1937 से पहले ये जितने भी फार्मिंग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में नहीं आते थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आते थे, ठीक है। रिमेंबर दिस, आफ्टर पासिंग दिस बिल इन 1937 द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, every single thing which is related to the agriculture thing comes under the government of India act, like grading and marketing। यहाँ पे देखो ना, आप टर्म से ही पता चलेगा, ग्रेडिंग और मार्केटिंग तभी होगा जब आप एग्रीकल्चर करोगे, और एग्रीकल्चर करने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में आया 1937 के एक्ट के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितना हमने किया है। Now move to the next question. The area of operation of society is restricted to one village. इसको क्या कहता है? Again, this is a primary agriculture credit society, PACS होता है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा कि PACS क्या होता है। PACS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखो PACS का काम क्या है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट तो फार्मर्स को हेल्प करेगी नहीं, लाइक अगर फार्मर्स को लेट सपोज लोन की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली तो जाएंगे नहीं, तो ये PACS का निर्माण किया गया है। PACS का काम क्या है कि ये एक्चुअली में किसके अंडर में आता है कि अगर किसी फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत है, लोन्स की ज़रूरत है, लाइक फर्टिलाइज़र लोन हो या फार्मिंग लोन हो या फिर उनके गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो लोन हो, अगर वो लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो वो PACS का काम करता है। और ये कहाँ से उठाता है पैसे? ये उठाता है कोऑपरेटिव बैंक से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक से ये लिंक्ड होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो एक्चुअली में लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, उससे ये PACS जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो लिंक्ड होती है। और ये PACS एक्चुअल में फार्मर्स को हेल्प करती है लोन्स या फिर एवरी सिंगल हेल्प विच फार्मर्स इज़ रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्रीकल्चर। ये हायरार्की है, यू कैन से दैट, ठीक है। ये हायरार्की है, फार्मर्स को अगर चाहिए कुछ भी तो वो PACS के पास जाएगा, PACS हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाएंगे, और कोऑपरेटिव बैंक्स अब RBI के अंडर में आ चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आ चुका है, ठीक है। सो ये एक वो हो गया, हायरार्की हो गई। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ रिगार्डिंग PACS। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू लाइक एग्रीकल्चर के फील्ड में ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका क्या बोलते हैं 1965 में हुआ था, 14 जनवरी 1965। आप इसका एग्जैक्ट डेट याद कर लो, लिखा हुआ है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द FCI वॉज सेटअप ऑन 14 जनवरी 1965 हैविंग इट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एट थंजावुर, राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी दे रखा है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली वेट, नाउ विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो एनीमोमीटर होता है, ठीक है। विंड स्पीड के लिए बेसिकली एनीमोमीटर होता है, ये एनीमोमीटर। और आपका बैरोग्राफी किस चीज़ के लिए होता है? तो बैरोग्राफी बेसिकली हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। और हाइगोग्राफ जो होता है वो होता है आई थिंक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मेज़र करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी एज अ कंसिडरेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इमेजिनरी लाइन
दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वल रेनफॉल टर्म्ड एज आइसोफाइट कहते हैं उसे, ठीक है। अ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन पीरियड इज़ नोन एज आइसोफाइट। आपको ये बाकी के टर्म्स पे भी जाना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा आइसोक्रोम क्या होता है, आइसोफेन क्या होता है, आइसोटेक क्या होता है। ये एक्चुअली में सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे फॉर श्योर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट क्रॉप इज़ बिटवीन, क्या होते हैं, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यानी बागवाने विकास, जो क्या बोलते हैं रिसर्च, बागवाने हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवान, ठीक है, यानी कि जो फूड से रिलेटेड होता है। इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, ठीक है, कर्नाटका में है, बेंगलोर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या है, सबको पता है, ये तो बहुत ईजी है, कैरेट होता है। नाउ द पीएच वैल्यू वेरीज फ्रॉम, पीएच वैल्यू कहाँ से वेरी करता है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लुक, लाइक वी नो दैट एक रेक्टर स्केल होता है जिसमें पीएच जो होता है वो आपका 0 to 14 होता है, ठीक है। 0 to 7 आपका एसिडिक होता है और 7 to 14 आपका बेसिक होता है और 7 को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, NUTRAL, ठीक है। तो ये बेसिक है पीएच के बारे में, जिसको नहीं पता उसके लिए। तो ये वाला पार्ट आपका एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, और 7 आपका न्यूट्रल होता है। आप 7 का एग्जांपल ले सकते हो लाइक सॉल्ट, NaCl हो गया, ठीक है। एसिडिक में सारे एसिड्स के नेम, बेसिक में सारे, एसिडिक में आप ये, बेसिक में लाइक सारे बेसिक्स में लाइक सारे जो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आई नो दैट, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर श्योर, ठीक है। सो आई एम नॉट, लुक आई नो वेरी डीप ऑफ पीएच वैल्यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लाइक अ वेरी डीप like everything. I'm not like cover every single thing in this particular video. This particular video is the idea of this video is to give you an idea with respect to the exam, okay. So I'm not going to give you every single information like very deeper, okay. So you have to cover these sections by your own also. तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। द वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कॉइंड बाय, किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ हाँ, इस पे मैं बहुत बात करना चाहूँगा आपसे, इसको मैं आपको एलोबरेट करना चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि ये फॉर श्योर आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ये फॉर श्योर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें एडिशनल बताना चाहूँगा। इसमें पूछा येलो रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। पल्स भी येलो होता है, ठीक है, और जो ऑयल सीड्स भी होते हैं उनका भी कलर मोस्ट प्रोबेबली येलो ही होता है। तो लेकिन मैक्सिमम येलो रिवॉल्यूशन में पल्स लगा के आते हैं, लेकिन ऑयल सीड्स होता है, रिमेंबर दिस, इसका आंसर ऑयल सीड्स है, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स के होते हैं, जो भी हमारे ऑयल सीड्स होते हैं वो येलो रिवॉल्यूशन में होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन होता है ये, रिमेंबर दिस, वाइट रिवॉल्यूशन होता है मिल्क प्रोडक्शन। फ्रूट रिवॉल्यूशन, फ्रूट प्रोडक्शन का कोई, आई थिंक फ्रूट प्रोडक्शन का कुछ कोई वो नहीं है, रिवॉल्यूशन नहीं है जितना मुझे पता है, बट यू कैन चेक, ओके, आई विल गिव दिस अप टू यू कि क्या फ्रूट प्रोडक्शन का कोई रिवॉल्यूशन होता है। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। So move to the next question. Your hybrid rice for commercial production was first evolved in चाइना में हुआ था। हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन चाइना, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्रिएज एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्रिएज एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक्चुअल में राइस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइस सबसे ज़्यादा मतलब उगाया जाता है हमारे इंडिया में, मतलब उसको, उसकी उपजाऊ, उसका जो प्रोडक्शन होता है राइस का, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है।
सबसे ज़्यादा इंडिया में नहीं होता, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका होता है, राइस का होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि द, एक सेकेंड, इसको भी मैं आपको एक दो लाइन बता देता हूँ। द रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विथ फूड प्रोडक्शन इज़, यानी कि अगर हम एनिमल के यूज से, मतलब एनिमल का इस्तेमाल करके अगर किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। रिमेंबर दिस। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि हम इसमें क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए मिक्स्ड फार्मिंग में ह्यूमन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रॉप का यूज़ करते हैं और एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का यूज़ करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। रिमेंबर दिस, दिस इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। और लाइक रिले क्रॉपिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था, मिक्स्ड फार्मिंग भी बता दिया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्रॉप को, वही मैंने आपको ये भी बताया था इंटर क्रॉपिंग भी, तो मैंने ये चारों कवर कर दिए हैं, ठीक है, अर्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ, हाँ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब में से किसको, मतलब किसके यूज से नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। लुक, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट फार्मिंग जहाँ पे हम कोई भी लाइक एडिटिव चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, मतलब कि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरली करते हो तो वो सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है, ठीक है। अगर आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिया, इसका मतलब कि आपने कुछ एडिटिव, यानी कि पौधों को या फिर आप कह सकते हो क्रॉप को उगाने के लिए आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, यानी कुछ एडिटिव चीज़ यूज़ किया फार्मिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा। रिमेंबर दिस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको एक्सक्लूड करता है, तो वो फर्टिलाइज़र को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल या सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला मेज़ होता है, मेज़ यानी मक्का, सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, गोविंद राजुलू चिंटाला। गोविंद राजुलू चिंटाला इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ठीक है। गोविंद राजुलू चिंटाला इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाउ ये तो नाबार्ड का चेयरमैन हो गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। मैंने बताया था कि कौन सी कमेटी थी नाबार्ड के लिए, नाबार्ड के लिए कौन सी कमेटी मैंने बताई थी आपको, इसकी कमेटी का नाम था शिवरमन कमेटी, SHIVRAMAN, शिवरमन कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमेटी पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। शिवरमन कमेटी हुई थी नाबार्ड के लिए और 1982 में 12 जुलाई को हुआ था, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1942 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1982 भी याद मत रखिए, विथ डेट याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लाइक 13, 14, 15 ऐसे करके देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत क्लोज होने वाले हैं क्वेश्चंस। आपको इजी चल के नहीं मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको क्लोजर मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो यूरिया में कितना परसेंट होता है, तो 46% होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो इसमें ये जो दो नाइट्रोजन है ये एक्चुअली में 46% कवर करते हैं, ठीक है, ये 46% कवर करते हैं। रिमेंबर दिस, ये यूरिया हो गया NH2CO NH2, और आपको ये यूरिया का फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकोजिन पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो। ये तो ईजी है, मतलब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। लाइकोजिन पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन इज़ अ
carotenoid that is present in tomatoes, processed tomato products and other fruit. It is one of the most potent antioxidants among dietary carotenoids. Okay, so the answer is tomato. Now next question is oranges सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मतलब प्रोड्यूस किया जाता है? महाराष्ट्र है उसका, मतलब संतरे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं, इसको याद रखिए. नाउ यहाँ तक हमने कवर किया है एक्चुअली में लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर इकानमी. ठीक है, यहाँ पे हमने लाइक 32 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी के. आई एम नॉट एग्जैक्ट विद द क्वेश्चंस बट इतना क्वेश्चन कर लिया है. अब हम थोड़ा कंप्यूटर अवेयरनेस पे बात करेंगे. ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस पे बात करते हैं. तो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म दैट रिफर्स टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट साइट. इसका मतलब कि जो हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अपने आप क्या बोलते हैं, दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम एन इंटरनेट साइट, मतलब जो ऐड वाले होते हैं, एडवेयर एक्चुअली होते हैं. इसका आंसर होता है व्हाट इज़ द टर्म दैट रिफर्स टू एन ऐड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर. ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हिडन होते हैं तो वो एडवेयर होते हैं. लाइक आप कभी कभी साइट खोलते होंगे कोई भी, लाइक डिफरेंट साइट्स, व्हेन यू ओपन द साइट यू फाउंड दैट देयर आर अ लॉट मैनी एड वेब पेजेस गोइंग टू बी ओपन, मतलब ऐड के पेजेस ओपन हो जाते हैं, तो वो एडवेयर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट. तो ये तो बहुत ईजी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे किसी दूसरे से वर्बली स्पीक कर सकते हैं. Next question, setting fonts for the text in your document is an example of. Setting fonts for the text in your document is an example of formatting का example होता है, मतलब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये तो सबको पता होगा, ये नहीं पता होगा सबको, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि ये URL होता है आपका. ठीक है, इसमें पूछा है कि हेयर www.example.com फिर कॉलन देके 80 जो लिखा है स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो रिमेंबर दिस, www.example.com को हम लोग डोमेन नेम कहते हैं. ठीक है, और ये जो 80 है ना, इसको हम पोर्ट कहते हैं. ठीक है, यानी इस पोर्ट पे ये वाली जो डोमेन नेम है वो एग्जीक्यूट की जा रही है. So this is regarding this. Now move to the next question. So your next question is, which network device is used to direct and dispatch data packets between different networks. तो ये look, before telling you about this question I just want to say that like connection, bridge, ethernet, hub और राउटर, इसके आपको इंडिविजुअली बहुत ही लाइक 3 to 4 पॉइंट्स डेप्थ में डेफिनेशन पढ़ने होंगे. ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में 1 लाइनर्स के बहुत डीपली क्वेश्चंस इनसे रिलेट करके पूछेगा. ठीक है, ब्रिज, कनेक्शन और ये राउटर से रिलेटेड. सो आपको बहुत ही लाइक डीप में जाना होगा. विच नेटवर्क डिवाइस इज़ यूज टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि लाइक अगर 2 नेटवर्क हैं तो इनमें लेट सपोज हमारा डाटा ये है, तो इसको अगर दोनों नेटवर्क पे डिस्पैच करना है तो किसके यूज़ से हम इसको इस पे और इस पे ये डाटा को भेज देंगे. तो ये राउटर के यूज़ से. राउटर का काम ही होता है पाथ प्रोवाइड करना डाटा को, तो ये क्या कर देगा, पाथ प्रोवाइड कर देगा डाटा को, तो ये इस पे भी पहुंच जाएगा, इस पे भी पहुंच जाएगा. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली बिफोर यूज़ ऑफ DBMS इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड यूजिंग, यानी DBMS से पहले, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन से पहले हम क्या यूज़ करते थे. बिफोर यूज़ ऑफ DBMS इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता था. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता था. नाउ OSI मॉडल हैज़ हाउ मैनी लेयर्स. ये जो आपकी OSI मॉडल है इसमें कितने लेयर्स होते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका वो बताना पड़ेगा आपको
कि OSI बेसिकली यहाँ से आया, ISO OSI मॉडल, ठीक है। ISO OSI मॉडल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें कितने टोटल लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। इसमें मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पे कितना लेयर्स होता है, ये बहुत पूछता है। 4 लेयर्स होता है। ये बहुत मतलब क्वेश्चंस गलत करते हैं लोग कि आईपी में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी, एक्चुअली में ये टीसीपी आईपी होता है। टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स होते हैं? तो 4 लेयर्स होते हैं। रिमेंबर दिस। Now move to the next question. Which feature helps to search the text through reference material such as dictionary, encyclopedias and translational services? तो हम रिसर्च का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। रिसर्च हो गया। Which of the following is a web browser? तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो पेंट तो आपको पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एज क्या है? ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र होता है एज। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये पूछा है कि लेट सपोज हमारा कोई पासवर्ड है जिसका नाम है, लेट सपोज माय नेम इज़ राज दीपक, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो जब आप इसको किसी एक कोड में एनक्रिप्ट करोगे, लाइक आपने कोई कोड में एनक्रिप्ट किया और वो कोड का एनक्रिप्शन इस लेटर के रिस्पेक्ट में ये है जो दिखे ना, ठीक है। इसका मतलब आपने इसको बेसिकली, ये आपका कोड था और आपने इसको डिकोड कर दिया, ठीक है। तो जो डिकोड होता है, जो आपने ये कोड था और आपने इसको डिकोडिंग कर दी, मतलब इसकी नहीं वेट, मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ। वेट लेट मी रब दिस फर्स्ट, एक सेकेंड बस, ठीक है। तो लेट सपोज आपने, ये आपका कोड है, ठीक है, इसका, और जब आप इस कोड को डिकोड करोगे तो ये एक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा डिकोड का। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे ये राजदीपक जो लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप इसको कोडिंग करते हो तो इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं, ENCRYPTION। लेकिन जब इस कोडिंग को आप इसमें चेंज कर दोगे, यानी राजदीपक में मैं नहीं, वापस मेरा नाम दिखने लगेगा, तो इसको डिक्रिप्शन कहते हैं, DECRYPTION, डिक्रिप्शन। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट है ये पूरा डेफिनेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड, ठीक है। तो उसका आंसर है इनक्रिप्शन, यानी इनक्रिप्शन के यूज़ से हम किसी एक मैसेज को एक कोड में वो कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कोई उसे पढ़ ना पाए, और जब हमें उसे देखना हो तो हम उसे क्या कर देंगे? डिक्रिप्ट कर देंगे, DECRYPT, डिक्रिप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज पढ़ लिया पूरा एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। इस वीडियो में मेरा पूरा टारगेट ये था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि किस टाइप के एग्रीकल्चर अवेयरनेस के और इकोनॉमी के और कंप्यूटर अवेयरनेस के वो 45 क्वेश्चन किस लेवल के पूछेंगे और क्या होंगे। मुझे बेसिकली ये लेवल अभी भी बहुत इजी लग रहा है, मतलब इससे लेवल अप करके ही वो पूछेंगे रियल एग्ज़ाम में। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉलिश मोर ऑन दीज सेक्शंस लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल वेदर ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं। अगर होगा आपके लिए ये इफ़ेक्टिव और आप कमेंट में लिखोगे यस कि ये इफ़ेक्टिव है और आपको 45 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा और मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आपको 45 क्वेश्चन की एक और बेस्ट क्या बोलते हैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा with additional information. So now I am lefting all up to you. If you like the video, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप फीडबैक दो। आप फीडबैक दोगे तो मैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी पब्लिश करूँगा ऑन दिस पर्टिकुलर लाइक एग्रीकल्चर इकानमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, सो दिस इज़ इट। एंड वन मोर थिंग, मेरा जो क्या बोलते हैं उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि आपको आइडिया लगे कि हाँ एक्चुअली में रियल एग्ज़ाम में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस के आ सकते हैं। बिकॉज आई नो दैट most of the candidates are not able to reach to these type of contents. I know this because they actually didn't know that from where they are going to give the question. So accordingly अब आपको इसी को पकड़ते हुए accordingly आपको अपने maximum कोर्स को पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट। अब मैंने 1 घंटा ले लिया इसको कवर करने में, आई नो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अपना बेस्ट दे करके आपको एवरी सिंगल थिंग बताऊं। ठीक है, सो दिस इज़ इट। एंड लास्टली, इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment in the video regarding any queries. If I am free, I will come to your queries, and you can asks your doubt also in those comments. I will definitely come to you. And last and one of the most important thing, I just want to tell you that if you are getting anything positive, anything effective, please tell me in the comments, because that is the only source for me to communicate with my viewers. Okay, so please do this, and thank you. I have to go somewhere else. Okay, so this is it. Thank you so much, students.